I want to give you a new series. और आज मैं आपके सामने एक नया सीरीज रखना मांगता हूँ। And we have already started that series. और हमने ऑलरेडी ये सीरीज को शुरू कर चुका है। It's called Battle. और इसका नाम युद्ध है। Battle. बैटल। Praise the Lord. Amen. When we started this year, the theme of our year was victory. और जब हमने ये साल की शुरुआत की थी तो हमारा थीम था विक्ट्री यानी विजय। And today I want to make you understand, if you want to have victory, you need to understand that there is a battle. और आपको आज ये समझने की जरूरत है, अगर आपको एक विजय चाहिए या विक्ट्री चाहिए तो एक युद्ध तो होएगा ही ना। And battles are important for the children of God. और परमेश्वर के बच्चों के लिए यह युद्ध होना भी बहुत When जरूरी Jesus है। started his ministry, he was in a battle. और जब यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की वो भी एक युद्ध में थे। When the first day it was declared that Jesus is going to be born in the world, there was a battle that was happening on this earth as well as in heaven. और जब पहले ही दिन बात हुई कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर होने वाला है, पहले दिन से लेकर उनके पैदा होने तक एक युद्ध ही People था। of God, when you are sitting here, there is a battle that is going somewhere. और जब परमेश्वर के बच्चों आप जब यहाँ बैठे हुए हैं, एक युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है। You know, you may not be able to see that battle, आप शायद उस युद्ध को देख ना पा रहे हो, but there is a battle that is going on in the heavenlies. लेकिन स्वर्गीय आत्मिक मंडली में एक युद्ध चल रहा है। Today I want to let you know this और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ that God is in the process of giving you a push today. कि परमेश्वर आपको धक्का मारने के लिए खड़ा हुआ है। How many of you like battles? आप में से कितने लोगों को युद्ध पसंद है? शुक्र है, कुछ ही लोगों को पसंद है। Yeah, battles are important. युद्ध जरूरी है। Because only when you get into the battle, जब आप युद्ध में घुसेंगे, then only you will know who is stronger. तभी आपको पता लगेगा बलवंत कौन है, ताकतवर कौन है। See, when you go to school, देखिए जब आप स्कूल जाते हैं, you know there is something called test. आपको पता है एक चीज होती है जिसका नाम है एग्जाम या फिर टेस्ट। You know, and you know that test is very important. और वो एग्जाम होना बहुत ही जरूरी हो जाता बचपन है। में अगर मान लो टेस्ट नहीं होता, And just imagine if the test is not happening, ये बच्चे हमें बेवकूफ बना सकते हैं, the kids can make fool of us, है ना? टीचर को भी बना सकते हैं। and they can make fool of the हमें teacher सब समझ आ also. रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, I am unable to understand everything, सब आ गया। लेकिन जब टेस्ट आता है, But when the examinations come, पता लग जाता है किसने कितना पढ़ाई किया है। then you get to know how much this person had studied. Today what God is telling to you is, आज परमेश्वर क्या आपसे कहना चाहता है? last days you have been praying. पिछले दिनों आप प्रार्थना कर रहे In the थे last few days you have been praising God. और पिछले कुछ दिनों आप आराधना स्तुति करे जा रहे थे You know, and you thought everything is fine. और आपको लगा सब कुछ बढ़िया चल रहा You है। thought your prayers are enough. आपको लगा कि आपकी प्रार्थना है काफी है। You thought your praises are enough. आपको लगा आपकी आराधनाएं काफी है। You thought your word of God reading is enough. आपको लगा वचन पढ़ना मनन करना काफी But है। it is only when a battle came in front of you, you realize that, you know, I need to push harder in prayer. I need to push harder in praises. I need to push harder in reading word of God. I need to push harder in the relationship with God. देखिए जब तक आमेन युद्ध नहीं आया, आपको लगा आपका प्रार्थना काफी है, आपका हर चीज काफी है, लेकिन जब युद्ध आया तो आपको समझ आया थोड़ा और प्रार्थना करना चाहिए, थोड़ा और उपवास करना चाहिए, थोड़ा और परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। आपको समझ आए? देखिए कोरोना वायरस जब तक आया नहीं ना तो हम लोग सब ठंडे थे। Until this coronavirus happened, we all were very happy and हमें तो लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक है करके। we thought the world is a happy place. You know, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब कोरोना वायरस आया ना तो अपने आप जब घर के अंदर दिक्कतें आने लगी, पहले पहले तो लगा छुट्टियां हैं, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। And when coronavirus came, we were all happy and we thought it was just a 10 days vacation You for know, all of us. बच्चे तो बड़े खुश हो गए, कहने लगे कि यार अब 10-20 दिन क्या स्कूल नहीं जाना है। And all the kids are so happy, we don't have to go to school. for नौकरी just करने वालों ने बोला 15 दिन मुफ्त काम करेंगे, है ना, अपने आप सैलरी पॉकेट में आ जाएगी। And people were so happy thinking that they don't have to go to their jobs, but still pockets will be filled with money. लेकिन ये 15 दिन 21 में बदल गया, 21-40 में बदल गया, अब 4 महीने से क्या घर पे बैठे हुए हैं। These 10 days became 20, 20, 40 and since 4 to 5 months we are sitting in our homes only. लेकिन वही सरवाइव कर पाया जो परमेश्वर के उपस्थिति में प्रेज़ द लॉर्ड टिक पाया। But only Amen. those could survive who was sitting in the presence of the Lord. परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमें? What does God want to tell us? आने वाले कुछ दिन कुछ और बैटल होंगे। In the coming days there will be few more battles to fight. आमीन। हारने वाले बैटल नहीं है, ये मत सोचिएगा। And these are not battles which you will lose, my dear ये friends. वाले जीतने वाले बैटल्स है, प्रेज़ द These लॉर्ड। battles we will win. आमीन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पिछले महीनों में हमने कई सारे परेशानियों को देखा है। And I want to tell you this, that
past few months have been very problematic and with issues. लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है मैं आपको थोड़ा पुश देने जा रहा हूं. And today the word of the Lord is telling us that He is going to push us a किसी little. को देख के बोलिए परमेश्वर एक पुश देने जा रहा है. परमेश्वर हमें push देने जा रहा है. आमीन. क्या है ये पुश? What is this push? कितने लोगों को ये पुश वर्ड समझ आया? How many of you understood the word ये push? होता है ना, कभी कभी पानी में कूदना होता है. And sometimes we have to jump into the है ना, water. दूर से पानी देखते हो तो कपड़े वपड़े उतार के अभी आप भी कूदेंगे. And when we see water from far, we are so excited. We are ready to jump in. हम लोग ऋषिकेश में थे We went to Rishikesh और हमें once, बंजी जंपिंग करनी थी. and we had to do bungee jumping है मैं there. तो बंजी जंपिंग का क्या होता है, आपके पैरों में रस्सी बांधते थे और आपको नीचे कूदना पड़ता है. And in bungee jumping, what happens is they tie a rope around you and you have to jump down. तो हम लोग सब दोस्त लोग क्या करेंगे 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 करेंगे. And all my friends were excited and were like, we are going to do तो this. वो लोग गए रस्सी रस्सी बांध ली, बोला कुछ नहीं होगा. अब आ जाके खाई के सामने खड़े हो गए. And all these harnesses were put on us and we were, standing in front of the जब cliff. नीचे देखा तो समझ आया माय गॉड, रस्सी का भी भरोसा सारा उठ गया. And when we looked down at the cliff and when we saw down, we were totally shattered. ऐसे जाने वाले लोग भी थे. And there were people who were going, like this. जैसे ही नीचे देखा And as soon as they saw, उन्होंने कहा यार मुझे लगता है मेरे कमर शायद हिल जाएगा. डर नहीं है, लगता है कमर थोड़ा हिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी. they said, I'm not scared, but I think my, kamar has some problem. है ना, मुझे अभी भी याद है हमारे साथ ना एक लड़की थी तो वो इतनी डरी हुई थी. And I still remember there was a girl who was with us and she was so वो scared. रस्सी बांधते हुए चला रही थी. तो हमने बोला नहीं जो कूदना, नहीं कूदना कूदना, लेकिन रस्सी बांधते हुए चला रही थी. And she was screaming at all times, even when the harness was being tightened on her. And we were like, don't go. She was like, no, I want to go. तो जो मेन बंदा था ना वो परेशान हो गया था. And the main guy, he was so irritated. चिल्लाई रही है. This girl was screaming and screaming on top of her voice. फाइनली वो चोटी पे जाके खड़ी हो गई, चिल्लाने लगे. सब लोग देख रहे हैं क्या इतना क्यों चिल्ला रही है करके. And she went and stood on the cliff and she's screaming on top of दो her तीन बार voice. कहा अभी कूदूंगी. And she was like, I'll jump now. है ना, तो बार उधर को देख के कहती है मैं कूदूंगी अभी कूदूंगी. She'll stand there and she'll say, okay, I'm going to jump now. In a minute, I'm going to उस jump. बंदे ने उसे धक्का दे दिया. And the man behind the main guy, he just pushed her. She went down. वो गिर गई नीचे. सारा डर खत्म हो गया. All the fear was gone. उसे समझ आ गया मैं कितनी भी बड़ी खाई में चली जाऊं मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पैरों को किसी ने क्या किया है, बांध के रखा हुआ है. और अगर मैं नीचे चले भी जाऊं तो मुझे कुछ होगा नहीं, क्योंकि खुदा ने, है ना, लोगों ने मुझे बचा के रखा हुआ है. उस रस्सी ने मुझे कितने लोगों को समझ आ रहा है? Praise the Lord. Push. Amen. God is telling you today that He's going to push you into some things that you were so scared of. और परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि वो आपको एक धक्का मारने वाला है उस पहाड़ी के ऊपर से जहां से आपको बड़ा डर लगता है Some कूदने of us में. are scared to get into some things. आप में से कुछ लोग डरते हैं एक नई चीज में कदम रखने से. All God is going to do is push. परमेश्वर सिर्फ आपको एक धक्का देने जा रहा है. And only when you get there you will understand that the push was the most important thing that was needed in your life. और जब आप एक बार कूद जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये धक्का ही था जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था. And that is why God is going to push us. और इसके लिए परमेश्वर भी हमें धक्का मारने वाला है. Now sometimes, कभी कभी we go through struggles. हम परेशानियों से मुकाम करते How हैं. many of you are going through struggles? कितने लोग परेशानियों से गुजर रहे How many हैं of you अभी? are going through some challenges right now? और कुछ चैलेंजेस मुझे चुनौतियां आपके तो जीवन अपने में. दोनों हाथ उठाने चाहिए. I should raise both my hands. So I'm raising both my hands and I'm telling you, a lot of challenges are there. और मैं आपको सच बता रहा हूँ बहुत सारी चुनौतियां मेरे जीवन में भी हैं. And as challenges are in front of me, और जब ये चुनौतियां मेरे आंख के सामने this is the हैं line God gave me. और ये लाइन परमेश्वर ने मुझे You दिया. are closer than you think you are. तुझे जितना लगता है कि तू पास है तू उससे भी ज्यादा नजदीक है. You are closer than you think you are. तू उससे भी ज्यादा नजदीक है. तेरी सोच से भी ज्यादा तू नजदीक है. I said, what am I close to, तो God? मैंने पूछा कि परमेश्वर किस चीज के नजदीक हूँ मैं. Victory. तो परमेश्वर ने कहा विजय. I am closer to my victory than what I think that I am. और परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरी सोच से ज्यादा मैं अपने विजय के नजदीक आ चुका हूँ. Now let me explain this to you. और मैं आपको समझाना मांगूंगा. See, if you were to be finished, देखिए अगर आपको खत्म होना ही था, if you were to be finished, अगर तुझे मार डालना होता, तुझे खत्म करना होता तो, if you were to be finished, अगर आपको खत्म होना होता तो the devil would have done it when you were born. शैतान जब आपके आप पैदा हुए थे तभी आपको खत्म कर सकता But था. if he couldn't do that when you were born, that means there is something that is protecting you. लेकिन अगर वो तब नहीं कर पाया इसका मतलब ये है कि कुछ तो तुझे बचा के रखा हुआ है और वो आज भी तुझे छू नहीं पाएगा. Now let me explain that to you. और मैं आपको समझाता हूँ. There was this woman
एक औरत थी you know, who was a witch. और वो एक चुड़ैल थी. नहीं, मतलब विच चुड़ैल भी नहीं, क्या बोलते हैं ऐसे, जादू टोना करने वाले. अच्छा, जादूगरनी थी. हाँ, and you know, अभी आप कहोगे कि ऐसी सब बातें आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसी तो कुछ चीजें है ही नहीं. And you must be saying, why are you saying all these things? These all things don't exist. बच्चे जब खुद पे बीतती है ना तभी पता लगेगा. When you understand, when it goes on to you. You know, साइंस है, लेकिन साइंस के ऊपर भी एक मंडल है, आमेन, और वो मंडल को कभी भी साइंस समझ नहीं सकता है. Science is always, there, but there is something beyond science. आमेन. सो ये जादू टोना करती थी, And she used to do all these है magic. ना, दूसरों को मार डालना, है ना, किसी को कुछ गलत काम करना, है ना, शैतान के ताकत के द्वारा ये बहुत चीजें करती थी. And she used to do a lot of things, black magic and so much witchcraft free. So she was very famous. और इसके लिए वो बहुत People used to be famous थी. scared of her. और लोग उसको देख के डरते थे. One day, a group of people came to her और एक बार एक झुंड लोग उनके पास and आए they said, the devil have told us, और उन्होंने कहा कि शैतान ने हमें कहा the है demons have said you need to go to this pastor's family. और दुष्टात्माओं ने कहा है कि इस पासवान के घर जाना है. You know, and said that then the order is to kill the pastor's family. और ये फतवा निकला है कि इस पासवान के परिवार को खत्म कर डालना है. This woman's name is Elaine, और इस औरत का नाम इलेन and this is a है. true story, by the way. और ये सच्ची घटना है, So, कहानी है. हाँ, ये सब का ऐसी मन घनत कहानियां नहीं है. It is not made up, it's true. So she, with all her power and might, अपनी सारी दम और शक्ति के साथ she, along with lot of people, और कई सारे लोगों के साथ decided to go and destroy this family और इस परिवार को नष्ट सत्यानाश करने के लिए because निकल पड़ी. they were bringing lot of people to Jesus. क्योंकि ये कई सारे लोगों को यीशु की ओर लेके आ रहे थे. When she went to there, जब वो वहां पहुंची, for the first time in her life, पहली बार उसकी जिंदगी में when she looked around, उसने जब चारों ओर देखा she was seeing huge angels out there in white robes. और उसने देखा कि बहुत ही बड़े बड़े स्वर्गदूत सफेद कपड़े पहनकर वहां खड़े हैं. They were holding hands, तो अब एक दूसरे के हाथ पकड़े थे and their shoulders were knit together. और उनके कंधे से कंधे मिले हुए थे. And she tried everything to attack that family, but nothing was happening. और उसने हर वो कोशिश की कि उस परिवार के ऊपर हमला करे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था. And that day she asked another person, और उस दिन उसने किसी और से पूछा, I was always told मुझे हमेशा कहा गया था that Satan is the most powerful God. कि शैतान सबसे भयानक और ताकतवर परमेश्वर है. If Satan is the most powerful God, why am I not able to even attack an angel that is standing there? और उसने इस प्रकार से पूछा, अगर शैतान ही सबसे बड़ा ईश्वर है तो इस स्वर्गदूत को मैं नष्ट या छू क्यों नहीं पा रही हूँ. So the person next to her said, तो इसके लिए वो दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, it is not like that. वो ऐसा नहीं है. कभी-कभी हमारी ताकतें भी कमजोर हो जाती है. Sometimes our powers are also, less in front of them. That day she understood one thing. उस दिन उन्हें ये बात समझ आ गई A child of God is always protected by the angels of the Lord. कि एक परमेश्वर का बच्चा हमेशा हर वक्त परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सुरक्षा कवच के अंदर रहता है. मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उस औरत का जीवन बदल गया उस दिन. उसने कहा, अगर ऐसी एक ताकत है तो मुझे वो ताकत चाहिए, वैसी नहीं, आमीन, जो इन ताकतों के सामने झुकना पड़े. And she decided that day that she wants to be with that power who has the utmost authority and not with somebody who does not. 30 years before she decided to come to और Jesus. 30 साल पहले उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह के पास That आएंगे. angel of the Lord looked unto Elaine and said, Elaine, Jesus loves you. Why don't you come to me? और स्वर्गदूत ने इलेन की आंखों में डालकर इस प्रकार से कहा, हे इलेन, यीशु मसीह तुझसे बेहद प्यार करता है, तू आ क्यों नहीं जाती उसके Today पास. I am here to let you know, people of God. आज मैं परमेश्वर के बच्चों ये बताने के लिए खड़ा हूँ, Jesus loves you. Why don't you come down to him and he's ready to accept you? यीशु आपसे प्यार करता है, क्यों ना आप उसके पास आ जाए, वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार खड़ा है. Sometimes when we are in the battle, कई बार जब हम युद्ध में होते हैं, we are closer than we think we are. हमें हमारे सोच से भी ज्यादा हम नजदीक रहते हैं. You know, it is only when we are the closest to our victory जब हम अपनी विजय से सबसे पास होते हैं, that करीब is when होते the हैं, devil will attack
attack you the most. और वही समय होगा जब शैतान सबसे ज्यादा आप पर अटैक When you करेगा। feel that attack after attack, problems after problems, and spiritual warfare after spiritual warfare is coming, understand you are closer than you think you are to your victory. जब आपको लगने लगेगा कि हमले पर हमले हो रहे हैं, परेशानी पे परेशानी आ रही है, दुर्घटनाओं पे दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो समझ जाना आप अपने विजय से बहुत ही करीब है प्रिय मित्रों। मैं आज आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। उस प्रभु की दासी ने एक चीज बोला। उन्होंने कहा जब हम और परमेश्वर के युद्ध है ना, सेना युद्ध कर रहे थे, अंदर पादरी और उसकी बीवी और उसके बच्चे है ना चैन की नींद सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था बाहर क्या कर रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप में से हम में से कुछ लोग आमीन आज भी जिंदा और चैन से इसके लिए सो पा रहे क्योंकि किसी और मंडल में हमारे सोते वक्त भी परमेश्वर ने हमें संभाल के बचा के परमेश्वर ने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है। ये जो खुदा मैं आपको बता रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये आपसे सिर्फ जगते वक्त प्यार नहीं करता, सोते वक्त भी करता है, गिरते वक्त भी करता है, कमजोरी के टाइम पे भी क्या करता है, प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यू आर क्लोजर देन यू थिंक यू आर टू योर विक्ट्री। आप अपने विजय से आपकी सोच से भी ज्यादा करीब और नजदीक में हैं। So if the struggles get harder for you, तो अगर परेशानियां आपके लिए मुश्किल पे मुश्किल हो जा रही you हैं, might be trying for a job and it might not be coming your way. और तू शायद एक नौकरी ढूंढ रहा होगा और वो नौकरी तेरे पास आ नहीं रही You might be होगी, trying to come out of an issue but it is getting harder for you. तू शायद एक मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन बड़ी दिक्कतें आ रही Come on, होंगी people, तुझे। you will say, I am closer than I think I am. Yes, I am closer to victory. Devil, I am closer to victory. Demons, I am closer to victory. Oh, problems, I am closer to victory. Yes, चाहे कुछ भी हो, बोलना सिर्फ इतना है, शैतान सुन ले, मुझे पता है मेरा विजय सामने है, मुझे पता है मेरा भलाई सामने है, मुझे पता है ये देश छुटकारा पाने जा रहा है। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. कितने लोगों को समझ आया? How many of you understood? कुछ लोगों को समझ नहीं आया, सिर्फ उनके लिए। Few people did not understand, just for them. 30-33 साल तक यीशु मसीह की सेवकाई आराम से कटी। For 33 years, Jesus was all fine in his इधर उधर लोगों ने यीशु मसीह को शैतान भी बुलाया, and here and there people called Jesus as Satan. इधर also. उधर यीशु मसीह के खिलाफ भी लोगों ने बहुत कुछ किया। And so many people were against Jesus also. लेकिन जब वो 33.5 साल के हो गए, Like, once he was 33 and उसके a half, प्रॉब्लम का लेवल बदल गया। the level of his problem increased. बदला कि नहीं बदला? Did it change or प्रेज़ द not? लॉर्ड, बदला। कैसे बदला? How did it change? जब वो गार्डन ऑफ गेत्सेमने के वाटिका में गया, And when he went to the garden of Gethsemane, आमीन, वो जब प्रार्थना करने लगा, and when he started to pray, इससे भी पहले 33.5 साल खुदा ने प्रार्थना किया था, and for 33 and a half years before also he used to pray लेकिन only. तब उसका पसीना लहू कभी नहीं बना। But then his, sweat did not become blood. लेकिन जब वो उस दिन प्रार्थना करने लगा, But then when he prayed on that day, उसका पसीना लहू में बदल गया। his sweat became blood. और शैतान ने उसे निरुत्साह करने की कोशिश की, And Satan tried to demoralize him totally. लेकिन यीशु को याद आया, But Jesus remembered आमीन, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, that I am Alpha and Omega. तू मुझे मेरा मृत्यु और दर्द दिखा रहा है, You're showing me my death and my pain. लेकिन आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड मृत्यु को नहीं देखता, मैं पुनरुत्थान को देखता हूँ जो तीसरे दिन के बाद होने जा रहा है। I do not see the death in front of me. I see the resurrection after 3 days. आमीन। कितने लोगों को समझ आ रहा है? How many of you can understand? आमीन। देखिए, लिखा है जेरिहो के बारे में एक चीज लिखा है। And there it is written something about Jericho. In chapter 6 verse number 1 it says like और this. 6:1 में इस प्रकार से लिखा है, It says that Jericho was shut down for us. और ये लिखा है कि यरीहो को हमारे लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। Jericho was shut down for the Israelites. और इजराइलियों के लिए यरीहो पूरी तरह बंद Why कर दिया गया। was it shut down? क्यों बंद कर रखा था? Because of the Israelites. इजराइलियों की वजह से ही। You know why some things are shut down for you? आपको पता है क्यों कुछ चीजें हमारे लिए बंद है? Because you are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। Amen. My God, कभी सोचा है? Amen. Jericho is shut down for you because you are a child of God. यरीहो बंद है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। If you are not a child of God, it's all okay. अगर आप परमेश्वर के बच्चे ना होते तो सब बढ़िया होता। But because you are a child of God, लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर की and संतान because हैं, you have a promise, और क्योंकि आपके ऊपर एक वायदा डला है, and that promise is greater than any promises that your parents have and your family has received, और वो वायदा आपके जीवन में सबसे बड़ा है, आपके माता पिता से भी बड़े वायदे जो उन्होंने किए। that's why there are some Jerichos that are standing
in front of you. और इसके लिए कुछ यरीहो तेरे सामने खड़े हुए हैं। See, when you are a child of God, देखिए जब आप परमेश्वर के एक बच्चे रहते the हैं, devil is not against you. ये शैतान आपके खिलाफ नहीं है। The devil is against the promise that is within you. शैतान तेरे अंदर वास करने वाले उस वायदे के खिलाफ है। नहीं समझ आया? एक और बार समझाता हूँ। I'll make you understand this once again. देखिए, शैतान आपके खिलाफ नहीं है। Satan is not against you. शैतान आपके अंदर एक वायदा है। You have a promise within you. See, अब्राहम के खिलाफ नहीं था। अब्राहम के खिलाफ वो कब से हुआ मैं बताता हूँ। I'll tell you since when he was against Abraham. 75 years तक शैतान को अब्राहम से मतलब नहीं था। For 75 years, Satan did not have any business to उत्पत्ति do की with किताब Abraham. 12वां अध्याय पहले वाक्य में परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर कहता है कि मैं तुझे एक जाति बनाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, तेरे नाम को उठाऊंगा, आमीन, दुनिया के कोने कोने में मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा, आमीन, तू जिसे आशीषित करेगा उसे मैं आशीषित करूंगा, तुझे जो श्रापित करेगा मैं तुझे श्रापित करूंगा। ये सुनते ही शैतान ने कहा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना है। And as soon as Satan heard the promises God gave to Abraham in Genesis, hallelujah, that I'll make you a great nation and you'll multiply as great nation, and whomever you bless I will bless, and whomever you curse I will curse, and all these promises when God gave it to Abraham, Satan started having problem with Abraham. He is against your promise. शैतान आपके वायदों के खिलाफ है। He is against the promise of the church. और शैतान कलीसिया के वायदों के खिलाफ Any है। church that grows, he is against that. कोई भी कलीसिया जो बढ़ती है उसको बड़ी दिक्कत है Any उससे। church that doesn't grow, he has no problems with them. और जो कलीसिया बढ़ती नहीं है उसको कोई दिक्कत ही नहीं। But any church that grows, he will stand against you. और कोई भी कलीसिया जो बढ़ रही होगी ना उसको बड़ी दिक्कत होगी। I don't know how many of you have promises today. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के जीवन में वायदे हैं। But if God has put forth the seed of promise within you, लेकिन अगर परमेश्वर खुदा ने तेरे अंदर कुछ वायदों के बीज बो रखे हैं, there are demons that are standing against you. तो कुछ दुष्टात्माएं हैं जो तेरे खिलाफ ही खड़े हुए हैं। Because they are not scared of you, but the promise that is within you that is going to impact nations after nations. और क्योंकि वो आपसे नहीं डरते, लेकिन आपके अंदर बसे उस वायदे से डरते हैं जो अगर पूरा हो गया तो राज्यों को बदल ही डालेंगे। From the time of Abraham to the time of me, the devil is not against us, he is against the promise that is within me. अब्राहम के समय से लेकर मेरे समय तक शैतान मेरे खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वसते इस वायदे के खिलाफ है। Today I want you to say something. आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। No matter what happens, चाहे कुछ क्यों ना हो I जाए, want you to say to yourself, मैं चाहता हूँ कि आप ये अपने आप से कहने no लगे, matter what happens, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, I will not give up on my promises. मैं अपने वायदों से हार नहीं मानूंगा। Come on, say with me, no matter what happens, मेरे पीछे बोलिए, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, I will not allow the devil to take away my promises. मैं शैतान को मेरा वायदा मुझसे छीनने की अनुमति नहीं दूंगा। The devil can come and hit you, he can tear you apart, he can do whatever he wants to do. शैतान उसको जो मर्जी आए करे, आपको मारे काटे कुछ भी करे। कल को खून के आंसू भी बहाने पड़ेंगे। Maybe you will have to cry, tears of blood. आप कहोगे यार कितना और सहना पड़ेगा। And you will say, how much more should I suffer, Lord? ये कहने से बढ़िया है मेरा वायदा बड़ा है। And instead of saying this, you should say that my promise is bigger. तेरी ताड़ना तेरे वायदे के अनुसार होती है। And your problems are according to your promises that you're going to get. इब्रानी की किताब 6 अध्याय में लिखा है परमेश्वर किससे प्रेम करता है। And in Hebrews in chapter 6 it's written, whom God loves. है ना, बहुत लोग कहते हैं ना मुझसे प्यार करता है। And so many people say that God loves me. कितने लोगों को लगता है परमेश्वर उनसे प्यार करता है? How many of you think God loves How you? many of you think God loves you? कितने लोगों को लगता है परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है? Okay, very good. How do you know Jesus loves you? तो आपको कैसे पता लगा कि यीशु आपसे प्यार करता है? प्रभु का दास पौलुस कहता है And man of God Paulus says, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बड़े आसानी से आपको पता लग जाएगा। you can easily get to know whether Jesus loves you or इब्रानी not. 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, जो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है परमेश्वर उसकी ताड़ना करता है। And there it is clearly mentioned, whomever Jesus loves, he disciplines them. हाँ, जब डंडे पड़े, ताड़ना पड़े, ट्रायल्स आए, दिक्कत आए, तो ये समझ जाना प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा तेरे खिलाफ नहीं है, वो तुझे एक लेवल और बढ़ने के लिए तुझे ताड़ना देकर परमेश्वर तुझे आगे लेके जा रहा है। When he disciplines you, he's not against you, my dear friends. He is trying to make you better and get you closer to your promises that you have. कुछ आजकल के प्रचार जो है बड़े झूठे प्रचार है। And few of the sermons these days are very, big lies, I should अमित
अमिताभ बच्चन के फिल्म के डायलॉग जैसे है। And it's like, some film dialogues. तू अगर परमेश्वर में आ तो तुझे गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, तेरे पास पैसा मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा, तेरा सारे परेशानी जाएंगे, खाना मिलेगा, बच्चे उठ के और पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। Some of us, some of the preachings today are like Amitabh Bachchan's dialogue. You'll get house, you'll get पता नहीं जो भी है, you'll get big car. अरे प्रियो, this is not the promises that God has promised for us. और प्रियो, ये सारे वायदे नहीं है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Praise the Lord. Amen. ये तो मिल जाएंगे आपको, वैसे भी मिल जाएंगे। You will anyways get it. अरे दाऊद इब्राहिम भी चोर है यार, उसके पास भी देखो सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर है ना। मैं देख रही है यार, दाऊद देख रहा होगा तो तुझे खत्म कर देगा। Amen. तो कहने का मतलब है ना, ये है ना, किसी को कुछ भी मिल जाएगा। Anybody can get anything that they want. Praise the Lord. ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। This you will get for sure. जरूरी नहीं है सबको फरारी मिले। No, it's not necessary that all of you will get Ferraris. अगर हम सबको फरारी मिल गई तो मारुति क्या करेगी? If we all buy Ferraris, what will Maruti company do? मारुति कार नहीं बताती आप कितने आशीषित है। And Maruti car does not show how much blessed you are. ये है ना, 4 मंजिल का घर नहीं बताता कि आप कितने आशीषित है। 4-storied building does not show how blessed you are. आमीन। असली आशीष तब दिखती है जब खुदा हमें ताड़ना दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। And true blessing is shown when God disciplines you and me. जब हमारे वायदे, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे अंदर से निकलकर वो वायदे 4 जनों तक और जाए तो समझ जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा प्रॉमिसेस फैल रहा है। When you see that your promises are multiplying into 2 to 4, then only you will know that you are blessed. So when you are a child of God, तो जब आप परमेश्वर की संतान there will be रहते हैं, things against you. तो तेरे खिलाफ पक्का चीजें होंगी। Jerichos will be standing against you. तेरे खिलाफ यरीहो पे यरीहो खड़े होंगे Walls will be standing against you. और बड़े दीवारें तेरे सामने खड़ी होंगी। Amen. Now the third and the last point is, और तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है, what should we do? करना क्या चाहिए? Now look into someone. किसी को देखो। किसी को तो देखो। Look at someone. Amen. जो स्क्रीन में मुझे देख रहे हैं, मुझे ही देखो। If you are watching me on screen, look at me Amen. at least. किसी को तो देखो यार। Look at somebody at किसी को least. देखो, शर्माने की क्या बात है, किसी को तो देखो। Why are you feeling shy? Just look at somebody. Amen. And say this with me. और ये मेरे साथ कहो। Amen. Say this with me. Praise the Lord. I am so sorry. Yeah. और मेरे साथ कहिए, praise the Lord. What are you seeing? What are you seeing? क्या आप देख रहे हो? क्या आप देख रहे हो? What do you see? क्या दिख रहा है? What do you see? What do you see? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? शादी करने वाले एक लड़के से पूछोगे, If you ask a groom who's about to get मान लो married, हिमांशु की 6 महीने बाद शादी हो रही है। you put the mask. मान लो, just imagine that in 6 months he's getting married. Amen. मान लो हिमांशु की 6 महीने बाद शादी हो रही है। Just imagine that after 6 months he's getting है married. ना, अब हिमांशु की शादी हो रही है, मान लो 6 months बाद, तो हिमांशु क्या दिखेगा हर दिन? What will he imagine or what will he see after 6 months? मैं चर्च में खड़ा हूँ, That I am standing in the church. है ना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, That I am standing with my मैंने would-be. सूट पहना है, I am wearing a suit. वो गाउन पहन के आ रही है, She's wearing a gown and she's walking on through the पास्टर aisle. वहां पे खड़े हैं, And pastor is standing there. बाहर खाना बट रहा है, And food is being distributed. हमें कुछ outside. नहीं मिल रहा है, We are not getting anything. हम फोटो खिंचा रहे We are हैं। clicking pictures. है ना, वो आगे भी सोच चुका होगा, And he must have thought, in future also. हनीमून में भी जा रहे हैं, Hey, we are going to honeymoon also. मनाली, शिमला, कश्मीर, लद्दाख और पता नहीं उसके ऊपर जो भी है। Manali, Shimla and all, topwards. ऐसे ही सोचोगे हिमांशु। Amen. He'll imagine such way only. सही देखना बहुत जरूरी है। It's very important to see the right thing. Amen. अगर वो सही देखेगा उसकी शादी हो जाएगी। If he sees the right thing, he'll get married. अगर ये वो सोचता रह जाएगा, अगर हिमांशु सोचता रहेगा मेरी बीवी खराब है यार, पता नहीं किससे बात कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी, तो शादी टूट जाएगी। And if he keeps on doubting her and imagining things that are wrong about her, he's not going to get married. कुछ properly. घर इसके लिए नहीं टूटते क्योंकि उस घर में लोगों में दिक्कत है, कुछ घर इसके लिए टूटते क्योंकि लोगों के आंखों में दिक्कत है। Praise the Lord. Some houses are broken not because there are issues among them. I mean, some houses are broken because they have issues in their eyes. Praise the Lord. आंखों का दृष्टि सही करना बड़ा जरूरी है। आंखों का दृष्टि सही करना बड़ा जरूरी है। Amen. It is very important to sort our eyesight. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. ये आंख बड़ा दिक्कत है। These eyes are a big problem. Amen. और मसीह लोगों के लिए आंख बड़ा इंपॉर्टेंट है। And for Christians, it's very important to have the right kind of Okay, eyes. मैं जल्दी से समझा के हम खत्म करते हैं। And I'm going to make you understand this very fast, and we are going to end this now. देखिए, जब यरीहो के सामने
यहोशुआ खड़ा था, And when Joshua was standing in front of Jericho, परमेश्वर का वचन यहोशुआ के पास आया। and the word of the Lord reached Joshua, पहला वाक्य कहता है, and the first verse says, यरीहो की दीवार तेरे सामने बंद है, and the gates of Jericho are closed in है front ना, of you. वॉल भी तेरे खिलाफ है और दरवाजे भी तेरे खिलाफ है। Even the walls are against you, the doors are even against you. आमीन। परमेश्वर पहले क्या कहता है, यरीहो की सारी दीवारें तेरे खिलाफ है, गेट भी क्या है, तेरे खिलाफ बंद है। आमीन, पहला। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए क्या कहता है, And in the second verse it says मैंने यरीहो तेरे हाथों में सौंप दिया। that I have given you Jericho in your hands. कुछ तो प्रॉब्लम है। There is some problem. जितना मुझे अंग्रेजी समझ आती है उसमें मैं पहले क्या बोलते हैं कि पहले बोलते हैं यरीहो की दीवार तेरे सामने खड़ी है, ये तेरे खिलाफ है। And the first problem, I found some problem here is that in the first verse it says that all the walls of Jericho are against you, and even the gates are against you. दूसरा वाक्य कहता है तू देख ध्यान से, मैंने तेरे हाथों में दे दिया है। And in the second verse it says, look carefully, I have given it to you in your hands only. जोशुआ कह रहा क्या बात कर रहे हो यार, अभी भी दीवार सामने खड़ी है और आप कह रहे मेरे हाथों में यरीहो है। And Joshua must be thinking, what are you saying, Lord? These walls and gates are against me, but still you are saying it's in my hands. You are saying the walls are against me, the gates are against me, and on the next verse you are telling me, the next thing you are telling me, I've given you the land and the king and the people and the warriors and everything into your hands. और आप कह रहे हो कि पहले वाक्य में आप कह रहे हो कि ये सारी दीवारें और सारे गेट्स मेरे खिलाफ हैं, और दूसरे वाक्य में कह रहे हो आपने मुझे सारे राजा और उसके अंदर की सारी अच्छाई भलाई आपने मेरे हाथ में दे दी है। कितने लोगों को समझने का मन है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, है ना? How many of you really want to understand? देखिए बहुत सिंपल है, It's very simple. है ना? मास्क पहन के एक बार इधर, है ना? Somebody with the mask, and if you can just come here. कोई भी एक जना जो मास्क है उनके पास आ। Amen. So what you need to do is imagine, मान लो, है ना, एबी के सामने एक दीवार खड़ी है। Just imagine there is a wall against. आप में से कितने लोगों को ये दीवार दिख रहा है? How many of you can see this wall? अभिनव थोड़ा इधर को अगर फोकस करोगे तो दीवार दिख जाएगी। Praise the Lord, है ना? इधर एक दीवार है, ये क्या है? There is a wall here. What is this? What is this? This is a wall. ये wall है, दीवार है। ये दीवार है? हेलो, थैंक गॉड। आई मीन आप लोग ऐसे डराओ मत, दीवार है ना? आई मीन दीवार है। अब क्या है ना? अभी ये दीवार क्या है? ये दीवार अपने लिए बहुत ऊपर है। This wall is very high for us. है ना? तो ये दीवार हमारे खिलाफ खड़ी है, मतलब इसे अपन तो तोड़ नहीं सकते। That when we है ना? see this तो wall, जब we हम इस cannot दीवार break को it. देख रहे हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं देख ये दीवार तेरे खिलाफ खड़ी है। And God is saying us that this wall is against you. You know ये तेरे खिलाफ है, It is against तू you. अंदर जा नहीं सकता। You can't go inside. पर परमेश्वर कह रहा है पर मैंने तेरे हाथ में ये सौंप दी है। But God is saying that I have given it to you. अब मैं सामने एक बड़ा दीवार देख रहा हूँ, I am seeing a big wall. in लेकिन front of me. परमेश्वर क्या देख रहा है कि दीवार उसने हमारे हटा दी है और उसने अपने हाथों में दे दी है। But what God is saying is that He has removed the wall and given it to us. ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। Listen to me carefully, you will understand. If you see this, you will understand this. अगर आप इसको देखेंगे तो समझ ही आ जाएगा। What I see is जो मैं देख पा रहा a हूँ wall. एक दीवार है। Where am I standing? कहाँ खड़ा हूँ मैं? I'm standing down, मैं नीचे खड़ा हूँ and the wall is bigger than me. और वो दीवार ऊंची है। मैं नीचे खड़ा हूँ यहाँ पे, I am standing here. और on the जब मैं ground, दीवार को देखता हूँ तो मुझे ऊपर देखना पड़ता है। and when I look at the wall, I have to look like this. लेकिन जब खुदा देखता है, But when God sees, वो नीचे से ऊपर को नहीं देखता, He is not looking from down to वो upwards. ऊपर से नीचे को देखता है। He is looking from up to slow. समझ आया? आप कहाँ से देखते हैं? यहाँ से वहां को देखते हैं, We see, from here. है ना? हम यहाँ से वहां को देखते हैं, फ्रॉम हियर टू देयर। We see things from here to there. लेकिन जब परमेश्वर देखता है वो ऊपर से नीचे को देखता है। But when God sees, He sees things from up to down. जब आप देखते हैं तो आपके लिए दीवार इतना बड़ा है, When you see, the walls are very huge for you. जहां से परमेश्वर देख रहा है उसके लिए दीवार इतनी छोटी सी बात है। From where God is seeing, these walls are really tiny in front of you. समझ आया? खुदा कहता है जहां से तू देख रहा है तेरे सामने एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा है, And God is saying, from where you are seeing, this wall looks huge for you. लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं मैं तेरे हाथों के भीतर उस वॉल को गिरते हुए यरीहो को तेरे हाथों में देखता हूं। But God says, from where I can see, I am giving this tiny wall in your hands. देखने का तरीका मैटर करता है। It's very important to change our vision. तो परमेश्वर हमें एक चीज आज सिखा रहा है। And God is teaching us something today. पिछले दिनों में तू ऐसे देख रहा था, In the past few days, you were looking like this. तुझे इन दिनों में ऐसे देखना है। Now you have to see things like this. देखिए जब तुम मानसिक तरीके से देखेगा तुझे हर चीज ऐसे दिखेगा, When you look like a human being, you will find everything huge लेकिन and जब on तू top of you. प्रार्थना में मुझसे जुड़ेगा तो तुझे चीजें ऐसे दिखने लग जाएंगी। But once you start interceding and praying to me, you will start seeing things from
अभी भी नहीं समझ आए तो खुदा कहता अगर तू विश्वास से कह दे प्रार्थना में कि ये पहाड़ हट जाए तो इस पहाड़ को मैं हटा दूंगा। कारण क्या है? And even if now you cannot understand, God says, if you believe that I am going to, remove this mountain from its place, it is going to happen. कैसे होगा? How will it happen? अगर तू इधर से ऐसे करेगा तो ये पहाड़ कभी नहीं हटेगा। If you look from here to there, that mountain is never going लेकिन to जब move तू from its place. प्रार्थना में विश्वास के साथ मुझे कहेगा प्रेज़ द लॉर्ड, तो वहां से इस पहाड़ को मैं तेरे लिए हटा दूंगा। But with prayer and faith, if you are ready, that God is ready to move those mountains for आज you. परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। Today God wants to teach few things हो to us. सकता है आपने एक बिजनेस विश्वास के साथ शुरू किया हो, It might be possible that you must have started a हो business सकता है आपने with एक faith. चर्च विश्वास के साथ शुरू किया You हो, must have started a church with हो faith. सकता है आपने एक परिवार विश्वास के साथ शुरू किया हो, You must have started a family with हो faith. सकता है आपने अपना आत्मिक जीवन विश्वास के साथ शुरू किया हो। Could be possible that you started your spiritual life with faith. लेकिन आप देखते हैं कुछ ताकतें प्रेज़ द लॉर्ड एक दीवार के समान तेरे खिलाफ खड़ी है। But you see some powers against you which are standing like a wall in front of you. लेकिन आज परमेश्वर आपको कहता है प्रेज़ द लॉर्ड अपने देखने का नजरिया बदल बच्चे। But today God is letting you know, change your eyesight, change your vision. आमीन। जब रोगी को देखता है तो ये मत बोल ये इसका बचने का चांस मुश्किल है, ये बोल खुदा चाहे तो ये बच सकता है। And when you see a sick person, hallelujah, don't see that he may not be able to survive, but see, change your eyesight and look at him getting healed by the name of Jesus. देखिए बहुत फर्क है। शिष्य लोग जब यीशु को क्रूस पे देख रहे थे, When these disciples were seeing Jesus on the cross, उन्हें लगा इसका खत्म अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। they thought it's all over. लेकिन He cannot do anything more. यीशु के बगल में रहने वाले चोर का दृष्टि नीचे से ऊपर को नहीं था, आमीन, ऊपर से नीचे को था। But the thief that was lying just next to Jesus, his eyesight was not like, from here to there, but it was like from up till down. It was different. Let me explain that. मैं उसको आपको The समझाऊंगा. greatest conversion that has happened in the entire Bible that I love is the conversion that happened on the cross. सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने देखा इस पूरे बाइबल में वो क्रूस के समय पर ही हुई थी. See, everybody that was standing down at the cross, हर एक बंदा जो क्रूस के नीचे खड़ा they were था, looking at Jesus like that. यीशु को ऐसे देख रहे थे. And he was hanged there. His hands were nailed. His legs were nailed. His body was pierced. He was out there almost dead. वो क्रूस पर टंगा हुआ था. उसके हाथों पे कील, पैरों पे कील, सर पे कांटे और उसके शरीर में भाला भोंका गया Oh, था. but when that thief was being on the other side, लेकिन जब वो चोर बगल में पड़ा था, when he saw जब Jesus, उसने यीशु को देखा, he did not see Jesus at a downward level. He saw Jesus at a higher level. उसने यीशु को नीचे की तरफ नहीं देखा, उसने यीशु को ऊंचाई में That's देखा. why he said to Jesus, when you go to paradise today to your father's home, don't forget me. Don't you remember me, Lord, because I know who you are. और इसके लिए उसने वहां पड़े पड़े कहा कि यीशु मसीह जब तू जाए स्वर्ग में तो मुझे भी याद रखना, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि तू कौन है. Today, if you're listening to my message, I have a good news for you. और आज अगर आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं तो आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है. God is letting you know that if you are ready to change your perspective, your eyesight, your eyes, the way you think, God is ready to give Jericho into your hands. और आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है, अगर तू अपना नजरिया, अपनी सोच बदलने के लिए तैयार है तो परमेश्वर तुझे यरीहो देने के लिए तैयार है. Let me end it like this. और मैं इस प्रकार से खत्म करूंगा. When Joshua was seeing the walls, और जब यहोशू उस दीवारों को देख रहा when था, Joshua was standing outside, और जब यहोशू बाहर खड़ा था, and when Joshua was seeing the might of Jericho from outside, और जब यहोशू यरीहो का जो ताकत है बाहर से देख रहा था, God was seeing from inside how it is going to fall down. परमेश्वर अंदर से देख रहा था कि कैसे वो दीवार गिरेगी, ढह God was जाएगी. seeing from inside how scared they are. और परमेश्वर अंदर देख पा रहा था कि कितने भयभीत थे वो आज लोग हो सकता अंदर. है एक शैतान, एक दुष्टात्मा, एक परेशानी, एक दिक्कत, एक परेशानी को देखकर तू उसके सामने डर कर खड़ा हो. And it might be possible that you might be scared in front of your problems, your demons, all the problems that the devil is trying to create तूने जब against you. उसको देखा तू उसे बाहर से देख रहा And है. when you see him, you are seeing him from the तू जब उसे outside. बाहर से देखता है तू डरा हुआ है क्योंकि तुझे लगता है कितना बड़ा है, लेकिन खुदा कहता है मैं अंदर से देख रहा हूं और मैं इसे गिरते हुए, डरते हुए, हटते हुए, आमीन, तेरे जीवन से निकलते हुए मैं इसे देख रहा हूं. Man,
And God is saying that when you see this problem, you might be feeling it is huge. But God is saying that I can see that this is nothing and I see it falling down. इसी के लिए तो खुदा कहता है गुप्त चीजों को देखने के लिए गुप्त में जाके प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है. And that's why God says to pray in secret so that you can see things in secret as जब तक well. आप ऐसे देखेंगे And when you see things like this, आप डर जाएंगे. you will be feared always. लेकिन जब आप ऐसे देखेंगे, When you close your eyes and see, आमीन, आपको हर चीज हटते हुए दिखना शुरू होगा. you will see all things moved. हमें से अधिकतर लोगों की आंख बंदी नहीं होती है. And few of us can never close our eyes. है ना, प्रार्थना में भी ना थोड़ा थोड़ा खोल के देखते हैं. Even while praying, we try है ना, to कुछ cheat. दिख जाए तो बढ़िया है. If I can see something, it's very है nice. ना, बंदी नहीं होता, क्या करें. We just can't close our फिर eyes हम कहते हैं कि properly. कुछ बढ़िया दिख क्यों नहीं रहा है. And you will be like, I can't see anything आमीन, properly. बढ़िया दिखाने वाला कोई इंसान नहीं है, बढ़िया दिखाने वाला खुदा है. अपने आंखों को बंद कर, प्रेज द लॉर्ड, और खुदा की उपस्थिति में जब जाओगे, गुप्त में छुपे हुए चीजें, खुदा गुप्त की चीजें तुझे दिखाने लगेगा. And God will start showing you some beautiful things in secret when you start praying to God. आज से कई साल पहले Few years ago, रशिया में in Russia, एक 7 प्रभु के दासों को पकड़ लिया गया, there were 7, men of God who were caught as captives. और उन 7 प्रभु के दासों को पकड़ के, प्रेज द लॉर्ड, एक बहुत ही एक ठंडे वाली जगह पे उन्हें लेके गए. And they were taken to a place which was extremely cold. और इतना इतना आइस था वहां पे, इतना इतना आइस, And there was ice approximately, above my knees. है ना, and waist. भयंकर, है ना, माइनस डिग्रीज में सब कुछ चल रहा था. And everything was in minus degrees also. तो इस ये जो कप्तान था वहां का, उस कप्तान ने इन 7 प्रभु के दासों को बोला, अगर तुम यीशु को ठुकरा दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे. And the captain there, he said so, ki if you accept, if you reject Jesus, we will leave you. So what happened next is, they were all taken to this place, और फिर अगला क्या हुआ, इन सबको वहां ले and जाया there was frozen ice there, गया। और वहां पे पूरी आइस जमी हुई थी। and there was water in that place. और वहां पानी भी It था। was extremely cold, और भयंकर ठंडी थी। and they said that we will and took off all their clothes, और उनके सारे कपड़े निकाल उन्हें नंगा कर दिया। and then they were placed next to this frozen water, और उस ठंडे पानी के वहां उन्हें खड़ा कर दिया। and said that if you do not reject God, और कहा कि अगर तुम अपने परमेश्वर को त्यागोगे नहीं, you will stand here and you will get cold and you will die. तो तुम इस ठंडे पानी, बर्फीले पानी के अंदर रहोगे और तुम मर जाओगे। Those who are from the medical field, you understand, if you're naked, you're at a place where it is minus degree, your blood will automatically, stop breathing and you will actually die out there. और आप में से आपको समझ ही आ रहा होगा कि अगर आप नंगे खड़े हैं इतनी ठंडी में, माइनस डिग्री में, आपका जो लहू है, जो खून है, वो जमी जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। All 7 of them were standing, और सारे 7 लोग खड़े थे वहां। and this captain was sitting in a chair out there. और ये कप्तान जो है एक कुर्सी पर बैठा हुआ He had था। provided some hot water in a jug there, और वहां पर एक जग्गे के अंदर गर्म पानी था। and there was some heat that was there. और आग जलाई हुई थी। And he said, if you reject God, come here, I'll give you cloth, I'll give you hot water, hot tea, and you can be here and you can be alive for the rest of your life. और इस प्रकार से इन 7 प्रभु के दासों को बोला कि अगर तुम अपने परमेश्वर को त्याग दोगे तो मैं तुम्हें गर्म चाय दूंगा, कपड़े दे दूंगा और तुम्हें आग के पास आने की So अनुमति दे दूंगा। all these men of God were standing there. और ये सारे प्रभु के दास वहां खड़े थे। Well, slowly, they were getting weaker, और धीरे-धीरे करके उनकी क्षमता खत्म हो रही and they थी were about to die. और उनकी मृत्यु होने ही And वाली somebody थी। was shouting, reject और Jesus. कोई चिल्ला रहा था कि यीशु को त्याग दे। But they were saying, तो no. उन्होंने कहा नहीं। Slowly, something amazing happened और there. धीरे-धीरे कुछ बहुत ही खूबसूरत हुआ The वहां। captain was looking, वो कप्तान देख रहा था। and when the captain was looking, he saw something. और जब वो कप्तान देख रहा था उसने कुछ देखा। He saw that there are angels on top of each of these men of God. और उन्होंने ये देखा कि इन 7 प्रभु के दासों के ऊपर स्वर्गदूत थे। For every person, there was an angel that was standing on top of them. हर एक व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत तैनात था उनके ऊपर। And in the hand of every angel, there was a crown, एक मुकुट था. एंड हर एक स्वर्गदूत के हाथों में एक मुकुट भी था। So as soon as the first one died and fell down, और जैसे ही पहला व्यक्ति मरता है और नीचे गिर जाता he है, can see from his naked eyes that this man gets up, his spirit gets up, and the angel puts the crown on him and he disappears. और वो अपनी ये कप्तान अपनी नंगी आंखों से देख पाता है कि व्यक्ति तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा उठती है और स्वर्गदूत उसके सर पर एक ताज को रख देता है। वो ये कप्तान बड़े ध्यान से देख रहा है. And
And this captain is looking very carefully. दूसरा बंदा मरा, उसने देखा आत्मा उठी, क्राउन लिया, एंजल ने रखा और उसे भी लेके चला गया. And the second one also died, and his spirit was taken, and the crown was placed on his head, and he was taken. तुरंत 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 तीसरे के साथ भी हुआ, चौथे के साथ भी हुआ, पांचवें के साथ, छठे, 6 जनों के ऊपर क्या है, क्राउन को रख दिया है ना, उस मुकुट को रख दिया. They placed that crown on top of them, and then all 6 of them went up. 6 जनों को स्वर्गदूत ने क्या किया, उठा लिया. When it came the 7th person, और जब 7वें इंसान की बारी आई, the angel was going up, the angel was coming down. ये स्वर्गदूत ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आता है. He'll go up and then he'll come So down. the captain is looking very clever, very clearly what is happening here. बड़े ध्यान से ये कप्तान देख रहा है कि हो क्या रहा बाकी है. 6 के साथ तो ये हुआ नहीं, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? The rest of the 6 people did not have to, he didn't see So anything he like that. tried to see clearly. तो उन्होंने ध्यान से देखा, He realized, उन्होंने देखा, finally the angel just went up. आखिर में ये स्वर्गदूत ऊपर चला गया. And this pastor came running to the captain और ये प्रभु का दास भाग के कप्तान के पास आया. और बोला कि मुझे जल्दी कपड़ा दो, मैंने यीशु को ताक दिया. And he said, I'm ready to sacrifice, reject God and just give me some warm clothes. मुझे जल्दी से दे दो. तो जल्दी से उसने कपड़े वपड़े जब वो पहन रहा था, And when he was wearing these warm clothes, उसने बोला तू क्या कर रहा था वहां पे? and he asked, what were you तू doing कुछ there? बड़बड़ा रहा था. You were mumbling something. तो प्रभु के दास ने बोला मैंने ये बड़बड़ाया था कि पहले मेरा मन कर रहा था कि क्या मैं ये बोल रहा था बार बार कि है ना कि क्या कहते हैं, मैंने यीशु को अपना लेता हूं, मर जाता हूं. फिर मैं डर रहा था तो मैंने कहा कि मैं यीशु को ठुकरा देता हूं. तो जब वो बोल रहा तो मैं मरने जा रहा हूं, ठीक है, मैं अपनाता हूं तो स्वर्गदूत नीचे आता है. जैसे जैसे वो कहता था मैं ठुकरा दूंगा तो स्वर्गदूत मुकुट लेके ऊपर जाता है. इस कप्तान ने उसको देखा, अपने सर के ऊपर ऐसे पीट कर बोला, अबे बेवकूफ, तू कितना बड़ा बेवकूफ है. उसने क्या किया पता है, अपने कपड़े उतारे, प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी वहां जाके खड़ा हो गया और कहा कि ये मुकुट मेरे ऊपर डाल दे. And he gave his life that day, and that's how, praise the Lord, उस दिन वो यीशु के पास आ गया. मेरा कहने का मतलब है ना, क्या बोलूं, आजकल तो लोग स्वर्गदूतों के बारे में भी बात नहीं करते. आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, हिंदी में समझा रहा हूं. आमेन. अभी कुछ स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. तेरा निर्णय मैटर करता है. आमेन. अगर तू हार मानेगा, कुछ मुकुट हम खो देंगे, लेकिन अगर तू डट कर आखिरी समय तक खड़ा रहेगा, आमेन, मैं गारंटी देता हूं कुछ स्वर्गदूत मुकुट हमारे ऊपर जरूर जरूर डालेंगे. आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड. कितने लोग आमेन कह सकते हैं आज, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर पे डट के खड़ा रहूंगा. आमेन.